Okay, go ahead. It's raining light. Yeah. I welcome everyone. I'm Kinjal. I am a consultant with the Indian Institute of Human Settlements, and we're here with the 9th Chacha organized by the Loktantra Shala. Loktantra Shala is a Rajasthan-based organization, and they have been mainly involved with the political education of and expanding the space and of the democracy, and actually providing a space in which people can come and reflect deeply on what is it to actually have democracy in practice. Today we have with us Professor Matthew Cherian, who heads the HelpAge India. He's been heading it, and he has a long to his list of achievements. He has a long list of that, and he has had an experience with cooperatives like NDDB in the past. Matthew Cherian is an authority on issues of aging and elderly and social protection of the elderly. Along with Professor Cherian, we have Mr. Suresh Kumar, who is a disability rights activist. He himself has been he has participated and won the Rajasthan Para Olympics, and he has been a voice, a commendable voice that has actually underlined the need for the Disability Act and how and its proper execution. Today, we would like to Sureshi, the Charcha today will be both in English and Hindi. I will try and balance between the two. सुरेश जी आप जो हैं वो राजस्थान बेस्ड जयपुर बेस्ड हैं और वो हमें वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं और विकलांगों की जो पॉलिसीज हैं उस पे काफी काम करते हैं. उन्होंने काफी मोलाइजेशन के थ्रू, धरनों के थ्रू ये बात बार बार हमें याद दिलाई है कि कैसे विकलांगों की जो पॉलिसी है उसमें डिजाइन के तौर पे और उनको लागू करने के तौर पे क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां आ रही हैं. फिलहाल वो लोकतंत्र शाला के साथ फेलो भी हैं और आज की चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि जो लोकतंत्र शाला ने ये चर्चाएं ऑर्गेनाइज की है वो कोविड-19 और उसके लागू हुए लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है छोटी से छोटी बातों पे उन लोगों पे जो समाज के दायरे के मार्जिन्स पे रहते हैं, जो उनकी और उन पे जो डेमोक्रेसी, जो हमारी लोकतांत्रिक संप्रदाय के वादे हैं, उन पे क्या असर पड़ता है. तो आज खास तौर से हम बात करेंगे एजिंग या बुढ़ापे की और विकलांग डिसेबिलिटी की, डिसेबल्ड पर्सन्स की और उन पे एक की क्या असर पड़ता है. पर मैं ये चाहूंगी कि ये चर्चा में हम दूसरा भी बताएं कि जिस तरह से हम अपने बुजुर्ग और विकलांगों को के साथ बर्ताव कर रहे हैं उससे हमारी जो लोकतंत्र संप्रदाय है, हमारी उस पे हम क्या बता सकते हैं. क्या जो एक प्रॉमिस था कि हर इंसान को डिग्निटी मिले, हर इंसान को वो रिस्पेक्ट मिले डेमोक्रेसी में, वो क्या आज हम कह सकते हैं कि बरकरार है अगर हम उसको हमारे बुजुर्ग और विकलांगों की फ्रेमवर्क से देखें. तो जिस हिसाब से ये चर्चा आगे चलेगी, मैं प्रोफेसर चेरियन और सुरेश कुमार जी को अनुरोध करूंगी कि 10-10 मिनट के लिए वो अपनी बातें पहले रखें और उसके बाद हम उनकी बातों को शामिल करके कोविड पे ले जाएंगे और उनकी बातों के बीच की कॉमनैलिटी को, बातों के बीच में क्या कॉमन है उसको देखेंगे. एंड लास्ट में उसके बाद हम ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे. तो शुरू करते हैं. मैं अनुरोध करूंगी मैथ्यू जी से कि वो अपनी बात रखे 10 मिनट तक. प्रोफेसर चेरियन.
Thank you, Kinjal. Thank you, School of Democracy and all the panelists. Um, Actually, we have been working in COVID quite intensely in almost 11 states of India. Some of the states we are not able to do work because of restrictions, but actually our work is mostly restricted to elderly. And in certain states, especially in Delhi and in Bombay, we have worked with migrants as well because, especially in terms of food and food distribution and ration distribution. So at the moment, we have covered more than 5 lakh meals to people, and we continue to do a lot of work with the elderly. And but actually, what saddens me is we work with elder self-help groups in villages, and we find three fundamental areas which is not reaching the elderly in many of the villages. And when I mean villages, I'm talking of the work in some of the aspirational districts, especially Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and to some extent Rajasthan as well. We find that ration nor pension has not reached any of the elderly. And there has been no particular inputs towards even healthcare of elderly, because we do a lot of work in healthcare, and we find medicines are also not reaching the elderly. So we think there are basically three fundamental rights, which is one, of course, is the right to food. So the second one is we think there's every elder person has a right to social security and pension. And thirdly, they have a right to health care. These three rights only offer them the right to dignity and the right to survival, and thereby Article 21, which is the fundamental right to life itself. So we find, in spite of the Food Security Act and various acts which are available, and also the government of India has been very, very poor in the response to the COVID pandemic. And as far as pensions go, though I sit on the NSAP committee, only on the 23rd of April were they able to transfer some amount of pensions to older people. And by the time almost 30, 31 days of lockdown had already happened, and they released the pension. And that is also, in many places, it is still to be distributed. And so that is the state of pensions. And of course, we think about 5.3 crore elderly need to be provided pension, and it is still not reached anywhere from 1.5 to 2 crore elderly. Maybe may have got the DBT transfer, which they have been talking about. And right to food is appalling. Even the rations are not being distributed to people. And in many places, we always say elderly are last and lost in the line, in the queues for the ration shops, and in the queues for distributing food. And this applies also equally to disabled people, also in the villages. And in many places, even during my visits to the villages in Greater Noida, I found the queues to the ration shops were at least half a kilometer long, and anywhere from 5 to 6 hours it takes to even collect your basic ration. And then from the ration shop to carry those goods back to the home, the elderly people find it great difficulty to even transport the food. So I think the right to food is completely not working, and I think government of India should take some cognizance of this fact. Even in the city of Delhi, in of course Basti, which is Rangpur Pahadi in Basant Kunj, we found that there were many elderly and many other young people who were not got their ration. And the chief minister of Delhi says that nobody goes hungry in Delhi, but that is not the truth. And this has been brought to the notice of the Aam Aadmi Party
officials that there are many slums where even food rations is not reaching. They have a hunger line and they also have a e-coupon. But how can elderly get e-coupons and enter their Aadhaar card, scan their Aadhaar card and put it onto the uh, website, etc., when they are not digitally empowered and many of them do not know how to use a smartphone? So goes the e-pass. So I think many of you who work on right to information, and we think that they should be working on. So I see that Nancy wants me to speak in Hindi. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है हिंदी में, लेकिन केवल मैं कहना चाहता हूँ कि राइट टू फूड और राइट टू पेंशन और राइट टू हेल्थ केयर अभी कोविड में नहीं हो रहा, और बुजुर्गों की कम से कम 5.5 करोड़ बुजुर्ग को अभी भी पेंशन ना राशन कुछ मिला ही नहीं। इसलिए सरकार को अभी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ केयर जो दवा है, काफ़ी जगह पे दवा मिलना भी मुश्किल है गांवों में, इसलिए इसके ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कोविड से नहीं मरेंगे तो दूसरा और बीमारी से मरेंगे। इसलिए हम लोग को काफ़ी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सरकार should be forced to perform if for the elderly at least, and not only for elderly but also for all other excluded communities across the country. I'm going to stop here, and so after that, of course, I can take some questions on it. Thank you, Mr. Cherian, for enlightening us with the conditions of the elderly. हालांकि प्रोफेसर चेरियन ने काफी कुछ हमें हिंदी में बता भी दिया, बट मैं एक बार फिर से उनका एक ट्रांसलेशन हिंदी में कर देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि हेल्पेज तकरीबन 11 स्टेट में काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, बाकी स्टेट में काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। और वो कह रहे हैं कि जिन जगहों पे वो काम कर रहे हैं उसको जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, माने कि जिनको अच्छा बनना है, जिनको जहाँ पे प्रगति हमें दिखनी चाहिए, वहां पे वो काम करते हो। और वहां की जो हालत देखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे बिल्कुल ही ना पेंशन पहुंच पा रहा है, ना राशन पहुंच पा रहा है, और ना ही तैयारी है सरकार की कि वो उन्होंने दवाई स्टॉक करके रखी हो बुजुर्गों के लिए वगैरह। तो मैथ्यू जी ने हमें एक ढांचा दिया है कि हम आर्टिकल 21 और राइट टू लाइफ की तो बात करते हैं, लेकिन अगर 3 राइट टू फूड, राइट टू पेंशन और राइट टू हेल्थ केयर अगर ना हो तो हम डिग्निटी की बात भी नहीं कर सकते। और डिग्निटी की बात ना करते हुए आर्टिकल 21 का जो प्रॉमिस है राइट टू लाइफ का, वो हमेशा ही वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि एक बात है कि ना ही हमारे पास तैयारी है और ना ही हमारे पास डिजाइन है, और जब है भी तभी भी एक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, एग्जीक्यूशन में तकलीफ आती है। जैसे कि अनाउंस हुआ था 1 महीने पहले, लेकिन जो 5 करोड़ में से भी 2 करोड़ बुजुर्गों को पेंशन मिल पाई है, उसको मिलने तक 23-24 अप्रैल हो गया। और ये पहली पेंशन ट्रांसफर थी, जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को तो और मिली भी नहीं है। आधे से ज्यादा बुजुर्ग जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, जिनको 1000 रुपए इस रिलीफ में अनाउंस किए गए थे गरीब कल्याण योजना में, उनको मिलते मिलते 1 महीना गुजर गया। और आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपए पहले दिन पे, लॉकडाउन के पहले दिन पे क्या काम कर सकते हैं, और लॉकडाउन के 30वें दिन पे क्या काम कर सकते हैं। बिल्कुल भूखमरी होने से और बचाने का ये एक बीच की सीमा है, और फिर भी यहाँ पे इतना देर किया है सरकार ने। तीसरी बात है कि हमने कभी भी सोचा ही नहीं है कि बुजुर्गों की दृष्टि से कि कैसे उन तक हम जो घोषणाएं कर रहे हैं वो क्या पहुंच सकती है। जैसे कि आप अगर कहें कि राशन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक राशन की लाइन इतनी लंबी होती है कि 5 से 6 घंटा तो बेसिक राशन कलेक्ट करने में लग जाता है। इसका मतलब कि जो बुजुर्ग है वो 5-6 घंटे धूप में, सड़क में खड़े रहे
और उसके बाद राशन उठा के अपने घर ले जाएं। कोई कोई इसकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं की गई है कि उनको डोर होम बेस्ड डिलीवरी हो या पेंशन की होम बेस्ड डिलीवरी हो। ई कूपन की बात की जाती है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन एल्डरली में या इवन स्मार्टफोन उनके पास होना बहुत ही मुश्किल है, इंटरनेट होना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी जो हमारी डिजाइन है वो बिल्कुल ही बुजुर्गों के दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं सोची जा रही है, और उनके लिए तो हम और भी ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं। और लास्ट में मैथ्यू जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि कोविड हो या कुछ और हो, लेकिन हमें सेंटर में रखना है कि बुजुर्ग अपनी जिंदगी डिग्निटी से जी पाए। तो जरूरी या कोविड की वजह से ऐसा ना हो कि हम उनको उनकी एग्जिस्टिंग बीमारियों से या उनको राशन ना मिलने की वजह से और तकलीफ पहुंचा दे। तो इसी से खत्म करते हुए मैं सुरेश जी को अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात आगे रखे, विकलांगों की दृष्टि से क्या हो रहा है अभी और क्या होना चाहिए। जिंदाबाद सभी साथियों को। मैं पहले है विकलांगता के बारे में थोड़ा सा एक बताऊंगा, उसके बाद में उनके साथ क्या हो रहा वो थोड़ा 2 मिनट बाद में बताऊंगा। जैसे सुबह जब विकलांग उठता है उसी टाइम उसका संघर्ष चालू हो जाता है, और जब वो रात को सोता है उस टाइम उसका संघर्ष खत्म होता है। अब हुआ यह है, पहले जैसे नॉर्मल टाइम था उस टाइम विकलांग एक ऐसा शब्द और एक ऐसा वर्ग है जिसका सबसे ज्यादा नामांकन नेताओं ने अपने मनचाहे अनुसार किया है। कभी विकलांगजन, कभी निःशक्तजन, कभी विशेष योग्यजन, और अब सबसे नया नाम है दिव्यांगजन। नाम हमारे बदलते गए पर विकलांग समाज की किस्मत दिनों दिन बुरी स्थिति में होती रही। विकलांग समाज, क्योंकि विकलांग समाज का काम नहीं बदला, योजनाएं नहीं बदली, विकलांग समाज सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। ये वर्ग जो अन्य किसी भी वर्ग की तुलना में सबसे ज्यादा पीड़ित, शोषित और अपमानित है। विकलांग वर्ग की स्थिति इतनी विकट होती है, संघर्ष और बेइज्जती का सामना करते हैं, वो अकल्पनीय है बताना। एक सामान्य वर्ग उसके बारे में न जान सकता न सोच सकता। ये सब इसलिए है क्योंकि हम एक वोट बैंक नहीं है, हम काम करने में असमर्थ हैं और हमारी परिस्थिति ऐसी है। इस परिस्थितियों के कारण परिवार वाले भी दिव्यांग समाज को मतलब इतना तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वो कमा नहीं सकता और वो निर्भर रहता है, हर चीज के लिए निर्भर रहता है। अगर पानी भी पीना है तो वो घर वालों को बोलेगा। और दूसरा ये है, जैसे ये कोरोना की महामारी जब से लागू हुई है उससे तो हमारे समाज को बहुत ही भारी संकट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए थे इस कोरोना महामारी को देखते हुए, वो नियमों का ना तो उन्होंने प्रचार किया है, ना जो नोडल अधिकारी उनके बारे में किसी को बताया। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है कि हमारे राजस्थान में नोडल अधिकारी किन को बनाया है, जिले में नोडल अधिकारी किन को बताया है। क्योंकि अगर इन्होंने बनाया है तो नियम बनाए हैं तो अपने मतलब इसका प्रचार प्रसार नहीं किया उन्होंने, जबकि उनका प्रचार प्रसार अगर करते तो सरकार के माध्यम से कोई हेल्पलाइन बनाई जाती तो हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता, हजारों की तादाद में फायदा होता। हमने जब सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की तब जाके हमारे को मतलब नोडल अधिकारी को लिस्ट अवेलेबल हो पाई, और उसमें जो लिस्ट थी वो भी आधी अधूरी थी। जैसे हमारे मुख बधिर साथी हैं, वो ना तो बोल सकते ना सुन सकते, तो वो अपनी बात कहाँ रखें। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई लेकिन उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण हमने हमारे संगठन के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन बनाई जिसमें मुख बधिर लोगों की बात सुनी जाए और दूसरी ऑर्थोपेडिकल विकलांग की बात भी सुनी जाए, ब्लाइंड लोगों की बात भी सुनी जाए और मानसिक रूप से जो ऑटिज्म विकलांग हैं उनकी बात भी सुनी जाए। तो उसमें ये रहा कि सरकार को सभी विकलांग को ध्यान में रखकर एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए, तो नहीं बनाई। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। विकलांग समाज की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, पहले से ही बहुत कमजोर थी। इसलिए थी क्योंकि दिव्यांग समाज 1% लोगों के पास ही रोजगार है, और कोरोना महामारी में तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई क्योंकि कुछ लोग कोचिंगों का प्रचार करके और अपना काम कर रहे थे, वो सारे काम उनके धंधे चौपट हो गए। दूसरा, राशन और पेंशन की समस्या रही क्योंकि सरकारों ने कोई विशेष
जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की। राशन पेंशन की समस्या रही है और कुछ लोगों को जैसे राशन पेंशन टाइम से नहीं मिल पा रहा था तो उनको ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पर हमारी शिकायत दर्ज करवाएं। और जब हमने उनके जिले में जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए थे उनसे हमने बातचीत की, वो हमारे से ही इस तरह से बात कर रहे थे जैसे उनका रवैया अच्छा नहीं था। हमारा नॉर्मल व्यक्ति उनसे कैसे बात कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमने उनसे बातचीत करके कुछ लोगों को सूखे राशन की व्यवस्था कराने की कुछ हद तक कोशिश की है, ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि हमने तो हमारे हिसाब से हेल्पलाइन बनाई है। सरकार बनाती तो बहुत ही ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल पाता। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समाज के लिए कुछ नहीं किया। जैसे केंद्र सरकार ने अपनी वाही लूटने के लिए 1000 रुपए की घोषणा की थी कि वृद्धजन, दिव्यांगों को और विधवाओं को 1000 रुपए की सहायता राशि 3 महीने तक दी जाएगी। लेकिन उसमें भी यह था कि जैसे राजस्थान में 5,36,176 लोगों को पेंशन मिलती है और इसमें जो ये 1000 रुपए की घोषणा हुई है इसमें राजस्थान के मात्र 20 से 25,000 लोगों को ही फायदा हुआ है। क्योंकि उसमें यह था कि 80% से ऊपर विकलांग होना चाहिए और केंद्रीय सूची में शामिल हो और गरीबी रेखा से नीचे में हो, बीपीएल में शामिल उन्हीं के लिए थी, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी। कई विकलांग हमारे ऐसे थे जो एक दूसरे जिलों में फंसे हुए थे, राज्यों में फंसे हुए थे। जैसे मूक बधिर साथी हमारे भरतपुर के, धौलपुर के, कोटा के, जयपुर में फंसे हुए थे, लेकिन वो अपनी बात किसी को बताने में असमर्थ थे क्योंकि वो ना बोल सकते, ना सुन सकते और वो किसी को बता भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी उनकी बात सुन भी नहीं सकता। इस तरह से हमारे लोग कई जगह फंसे हुए थे, बहुत परेशानी में थे। कुछ हद तक हमारे संगठन ने जैसे किसी ने संपर्क किया उनके लिए हमने पास की व्यवस्था करवा करके उनको उनके गृह जिले में भिजवाने का काम किया है। और ये रहा कि हमारे संगठन के द्वारा बहुत से लोग के पास में आकर कई जैसे हमारे मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। अब मानसिक रूप से तो विकलांग उनकी स्थिति बहुत खराब होती है क्योंकि उनका कमरे के अंदर उनको बंद रखना, उनको रस्सी से बांध के रखना, एक बात को बार बार रिपीट करना, तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उनकी कईयों के माँ बाप दूसरी जगह फंसे हुए थे, वो नहीं आ पा रहे थे। जो सरकार को इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। वो भी हमारे संगठन के द्वारा कुछ लोगों के लिए हमने किया। सभी प्रकार की विकलांगों की ड्यूटी जैसे सरकार ने जो नियम बनाया था उसमें यह लिखा हुआ था कि सरकार की विकलांगों की इम्यूनिटी पावर कम होती है और इसमें संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। ऐसा एक आदेश मतलब लगाया था जिसमें विकलांगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। लेकिन बहुत से लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी क्योंकि हमारे लोगों को इस जानकारी का पता ही नहीं था कि हमारे लिए ऐसा कोई आदेश निकला है। लेकिन इस प्रकार से भी हमने कुछ लोगों के हमारे पास कॉल आया है तो नोडल अधिकारी से संपर्क करके हमने इनकी ड्यूटी नियुक्त करवाने का काम किया है। दूसरा, जैसे हमारे कुछ ऐसे कोई साथी हैं उनका ट्रांसफर हो गया लॉकडाउन से पहले, और जैसे बुजुर्ग भी 56 साल का बुजुर्ग भी है और विकलांग भी है, जबकि ऐसा नियम है कि विकलांग को गृह जिले में लगाया जाए, उसके बावजूद उनका ट्रांसफर कर दिया गया और लॉकडाउन के कारण उस बंदे को मतलब वहां बाय डाक रिलीव कर दिया और वो दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर पाया। 3 महीने की उसकी सैलरी नहीं मिल पाई और वो सरकार से लगातार संपर्क कर रहा था, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उसने हमारे संगठन से संपर्क किया तो हमने उनकी शिकायत सुनकर के और फिर मतलब एमकेएस के निखिल जी से मिलकर के उनका ट्रांसफर निरस्त करा कर वहीं गृह जिले में उसको ज्वाइन करवाने का काम करवाया, जबकि यह काम सरकार की तरफ से होना चाहिए था। आगे बात यह है, जैसे 20 लाख करोड़ के पैकेज की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, उसमें विकलांग समाज का नाम तक नहीं है। उसमें विकलांग समाज का नाम तक नहीं है। बिहार में जैसे आयुक्त विशेष योग्यजन जोन के माध्यम से मीटिंगें कर रहे हैं और जैसे जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के नोडल अधिकारी और संबंधित अधिकारी जोन पर मीटिंग करके उनकी समस्या सुन रहे हैं और समस्या का समाधान भी हो रहा है। उस तर्ज पे सब जगह समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे केंद्र सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 रैंक 1 राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार ने विकलांग समाज के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की है, उसी तर्ज पर
वन रैंक वन पेंशन की विकलांग समाज के लिए महामारी में घोषणा क्यों नहीं कर सकते? उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सरकार को इस तरह की घोषणा करनी चाहिए। और विकलांग समाज जैसे पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ विकलांग समाज की अनदेखी हो रही है। वो अनदेखी इसलिए हो रही है कि हमारा समाज एक वोट बैंक नहीं बन सकता, क्योंकि इनकी परिस्थितियां और स्थितियां ही ऐसी हैं। और कोरोना महामारी विकलांग समाज को लाभ के लिए विशेष पैकेज, अन्य प्रकार की व्यवस्था करे, क्योंकि जिस प्रकार सरकारें वोट का टाइम आता है उस टाइम विकलांगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको वोट चाहिए, तो वो अपनी व्यवस्था कर देते हैं। अब इस महामारी में हमारे समाज के लोग इस तरह से परेशान है, इस तरह से मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, 2 टाइम की रोटी के लिए उनको तड़पना पड़ रहा है, और उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं उनको राशन मिल रहा है, 750 रुपये पेंशन मिल रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर 750 रुपये और पेंशन में 750 रुपये की पेंशन और 10 किलो गेहूं, जैसे 5 किलो गेहूं, अगर उसमें काम चलता है, तो मैं बोलता हूँ ये सरकारें अपनी जो पेंशन ले रही है वो बंद कर दे, 750 रुपये पेंशन ले और 5 किलो 10 किलो गेहूं ले, तो हमारा विकलांग समाज भी इनसे मांग नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के ऊपर पहले ही ज्यादा असर पड़ रहा था और इस महामारी में बहुत ज्यादा असर पड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी, आप बात रखने के लिए। सुरेश जी ने काफी कुछ हमें बता दिया इन 10 मिनट में, और किस तरह से एक पॉलिटिकल मांग नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एकजुट होना, एक वोट बैंक होना जरूरी है, और ये विकलांग समाज शायद हो नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी बात है जो हमें रिफ्लेक्ट कराती है कि क्या हमारी लोकतंत्र प्रैक्टिसेस सही हैं, किस हिसाब से उनको चेंज होना है। वहां से लेके बहुत ही रोजमर्रा की बातें, जैसे कि अगर सरकार ने कुछ नियम निकाले भी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे विकलांग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और उनके लिए सरकार ने बोला था कि इनकी ड्यूटी से अभी आने को मना किया जाए कोरोना के टाइम पे, लेकिन ये बात पता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ही केयरलेसनेस है कि आप बता भी नहीं पा रहे हो जो कानून है, वहां से लेके कि एक बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि इस पॉलिसी को, इस सिचुएशन को, विकलांग की जो चैलेंजेस होती है रोज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उससे कैसे देखा जाए। तो मैं क्विकली, मेरे 2 सवाल हैं, एक सुरेश जी से और एक मैथ्यू जी से, जो मैं अभी रखूंगी, और उसके बाद हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। तो मैथ्यू जी, एक है कि हमने हमेशा we have always thought of cash transfer as an immediate relief, pensions as an immediate relief. But at present, if you look at the entire complexity of corona, where it is considering world over, our statistics tell us that the elderly are one of the most vulnerable groups to fall to the COVID-19 infection and actually have the highest mortality rate. What other steps are we looking for from the government? And what role does cash transfer, if at all, plays at this point, and what will be that ideal entitlement, and what should be the base of the coverage? Is this the time to go universal for elderly pensions? Professor Cherian? Ideally, universal pension should be adopted, not only for elderly, but also for all the disabled people and also the single women, widows, etc. So when I did the calculation, even if we look at the Sumit Bose committee report, or we look at the state of pension which you mentioned, there will be at least 8.7 crore elderly plus various groups, excluded groups, which will require an immediate pension transfer. And unfortunately, there is no mention of all this even in the Nirmala Sitharaman's
package or whatever it is they have issued. And there's a whole lot of, I would say, in the statements of the finance minister, which excludes elderly, disabled, the whole lot of people. There is all talk of only loans to people. There's only talk of Kisan credit card and credit limit to the Kisan credit card. So how many of the elderly have even a Kisan credit card? How many of the disabled people have any of these instruments of credit card, etc.? So I think there's high time that they give a package for the under the National Social Assistance Program (NSAP) and at least transfer 6 months pension to all the people are currently entitled. And about the universal pension, that is something which all of us need to pursue so that they do a transfer. The third aspect that we are seeing is because HelpAge has a lot of medical personnel, and when we are going to villages for treating elderly, we find there are other problems other than COVID. So there's a whole lot of treatment and medicines which is required. And earlier, Rajasthan government had its transfer of medicines, but apparently that medicine seems to have stopped, even in Rajasthan. In other states, the quantity of medicine available for even treating basic issues like hypertension, diabetes, and other problems don't seem to be there in many villages. So leave aside COVID medicine, even the other basic medicine is not available. So there is a need for both ration, pension, and medicines. These three areas need to be provided to the elderly, and I'm sure the same needs will be there for the disabled, for the other excluded groups, etc. So if they can concentrate on these three areas, they would be much better. And in the health also, we find that the district hospitals and the ASHA workers are so bogged down with COVID, they have no time to look at any other problems in the villages. So they are left completely high and dry. So this is a time that we start addressing even medicines and healthcare. थैंक यू मिस्टर चेरिन क्विकली प्रोफेसर चेरिन ने कहा कि मैं आई जस्ट यूज दिस वन सेंटेंस कि राशन पेंशन और मेडिसिन इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए. उनको लगता है बुजुर्गों के लिए, पर दिव्यांगों के लिए भी उनको लगता है कि सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगी. और जब वो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अभी क्योंकि सारा कंसंट्रेशन कोविड पे है, वो कह रहे हैं कि जो रेगुलर मेडिसिन हैं उसकी क्वांटिटी, उसका स्टॉक कम हो गया है, उसका मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और उसका मिलना बहुत ही जरूरी है. तो ये बात मैथ्यू जी ने रखी. प्रोफेसर चेरिन, वन रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस दैट आई वुड लाइक टू आस्क, इट्स स्लाइटली टेक्निकल but I think it's very important, is that what we are seeing in pension announcements is also a lot of front loading of the total outlay of pension expenditure. So one demand is that we do an upfront payment by front loading the pension outlay, but should we also then worry about and speak as vociferously about the expansion of the total outlay? Because and I see this with the understanding of what our medical practitioners are saying, that we'll see many such peaks and troughs of COVID, and what happens at the end of the year when we have actually upfronted a lot of these pension expenditures. So it is one thing to upfront an expenditure of, foregoing credit at this point, but shouldn't right now be the time of announcements of expansion of outlay instead of front loading of the pension expenditure? I ask you this particularly as a person chairing the committee at the NSAP. Actually, there is, even if, as I told you in the beginning also, payments are going very late. So if they front load the pension amount and pay even for 6 months in advance, I think people will have some money to tide over the COVID crisis. And but of course, universalizing the pension will be the best possible way forward. But
currently government is in no mood to listen to the social sector. And though they are keen that a lot of NGOs participate in COVID and do various kinds of things, we are actually having a huge problem in even managing our COVID operations, because we have been asked to report by every 15th of month for the FCRA. We are the tax persons have said that the section 12A and the ATG will be has to be re-applied for. They have of course changed the application date from June to October. So all these issues are there. And I also participate in the Niti Aayog meetings, etc. But Niti Aayog is only one forum which at least seems to listen to the NGOs. The other forums are completely silent. And I don't think at this point of time, how do you communicate? It's a big challenge. Maybe people like you should also think about how do we communicate this or advocate this to the powers that be. Thank you, Mr. Charan. सुरेश जी, आपके लिए कुछ सवाल ऑडियंस से आ रहे हैं और काफी ऑडियंसेस ने ये भी कहा है कि बिल्कुल ही उनकी बातें जैसे कि आपने हूबहू सामने रख दी हैं, तो उनको लग रहा है कि किसी में बातें उनकी भी बातें सुनाई है एक प्लेटफॉर्म पे। जो सवाल आपके लिए है वो दो हैं। एक है कि क्या 3 इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए विकलांग समाज को लेके, और अभी कोविड के चलते उनपे कोविड लॉकडाउन और कोविड के होने के, हाँ, सो हम लॉकडाउन की बात भी कर रहे हैं और इन्फेक्शन अभी हमारी सोसाइटी में जारी रहेगा, 1 साल तक तो जारी ही रहेगा। और जैसे आपने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट की ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ गई है कि ज्यादातर दिव्यांग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इसके चलते क्या किस तरह से उनके काम पे, उनकी आय पे फर्क पड़ेगा, और उसको मिटिगेट करने के लिए तुरंत 3 इमीडिएट स्टेप्स हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं। और दूसरा एक रिलेटेड सवाल है, मैं अभी ही बोल देती हूँ, आप दोनों को मिक्स करके जवाब दे सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं। क्या आपको पता है कि किसी सरकार, किसी स्टेट सरकार या किसी पर्टिकुलर संस्था की प्रैक्टिसेस इस वक्त जिन्होंने इन मुश्किलों का सामना करते हुए इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को फिर भी थोड़ा बहुत संभाला हो, तो ऐसी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं क्या अब तक? सुरेश जी। हाँ जी, इसमें प्रथम तो मेरा ये रहेगा, आर्थिक स्थिति को देखते हुए जैसे मैंने पहले भी बताया है, इन्हों 1 रैंक 1 पेंशन के तहत इनको 5,000 रुपये पूरे हिंदुस्तान में कर देना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सके, क्योंकि उनकी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगार पहले भी थे लेकिन और अब ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग जैसे अपने ऑटो रिक्शा से प्रचार करके या कुछ भी करके छोटा मोटा काम करके वो काम करते थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये लोग हमारे इधर उधर फंसे हुए हैं, जो अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत हजारों की तादाद में फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे, उनको घर तक पहुंचाने का काम करे। तीसरा यह है जो राशन और जो ये पेंशन की है, भाई सरकार मान रही है कि कोरोना महामारी दिव्यांग समाज को ज्यादा होती है, तो उस तरह से उनको घर पे पहुंचाने का ऐसी व्यवस्था करे जो उनके घर तक जाकर के उनको राशन और पेंशन दी जा सके। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये है मान। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो सुरेश जी के 3 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड्स है। मैं इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ उन ऑडियंसेस के लिए, फॉर ऑडियंसेस दैट डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, दैट देयर इज the demand of one right one pension, which is 5,000 rupees. We actually have a calculation here of what should be an ideal cash transfer. The second thing that he's talking about, and I am quite personally shocked that we are talking about this 2 months into the lockdown, is that there are we think of disabled as disabled, but we don't think of disabled as disabled who are migrants. We don't think of disabled as disabled laboring bodies.
And Sureshi is telling us that there are actually, he on his helpline has gotten cases where there are migrants who are disabled and are stuck, who are away from their family, who are away from their caretakers. So one of the immediate steps from the government, this should in fact, I believe, be a immediate appeal to the government to at least get them back to their families, to their homes, to their caretakers, to their where they can be really, really cared for. The third thing he's saying is that whatever is it that you're delivering, be it in the form of food or ration, should actually have, or even pension should have a doorstep delivery component to it. And I believe that is important both because of the disability they face, but also because of the parameter of the condition of social distancing that we need to follow, and what are the challenges that actually come in when you are disabled and are asked to follow social distancing. So these are the three things that Sureshi told us, and Matthew G ne kaha ki universalization is absolutely important at this point. We don't know how it will happen. He is skeptical given the attitude of the state, but according to him, the role of cash transfers is at this point for the elderly can be extremely immense. So these were some of the learnings that we have immediately एक और from बोलना the था study. जी किंजल जी, मेरे को ये बोलना था, जो हमने ये अभी तक जो सरकार को काम करना था, वो जो काम हमने किया है, वो हमारे एक संगठन का सपोर्ट रहा है, जिसका नाम लेना मैं उचित समझता हूं। मजदूर किसान शक्ति संगठन की तरफ से इस चीज का हमारे को फुल सपोर्ट रहा है, और इस वजह से हम कम से कम 500-600 लोगों को सूखे राशन की व्यवस्था करा पाए हैं। लोगों के पास बनवाने में सहयोग रहा है, लोगों को इधर उधर मतलब उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। जो भी ये काम हुआ है, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के सहयोग से रहा है। Thank you. Thank you, Sureshi. Sureshi would like to thank the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan for helping out in his efforts of relief for the disabled. So this was a really insightful chat for all of us. And I'd like to thank our speakers, Professor Cherian and Suresh Kumarji, for enlightening us with very pertinent and extremely dire situation that two of the most I would say two set of population that we need to think about carefully at this point, because I believe that the way they will be treated right now will be a reflection on our democracy at this point. And I'd like to thank the Loktantra Shala for organizing this charcha and the audience for joining us. Thank you. मैं कुछ कह सकता हूँ किंजल? बिल्कुल जी, निखिल जी प्लीज। हाँ, लोकतंत्र शाला के तरफ से मैं घुसा हूँ इसमें। लोकतंत्र शाला, on behalf of Loktantra Shala, I would like to say that firstly, thank you all three of you for being here. आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्यू जी ने बुजुर्गों की बात आज नहीं, आज से लगभग 10 साल हो गए जब से एक रिश्ता बिटवीन, पता नहीं कितने साल हुए, पेंशन परिषद और हेल्पेज के बीच में, जिसमें ये स्पष्ट हुआ है कि it has become very clear that the most marginalized elderly are the responsibility of all of us, and therefore HelpAge's mission has not been restricted to those who are already vocal and people who have had a voice, but they played a very big role in supporting advocacy groups and in fact getting advocacy groups together to try and raise the voice. अब इस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले बात में जब 7 सूत्रीय बात रखी, तो उन्होंने पहली बात कही कि बुजुर्गों का ध्यान रखें, कि पे अटेंशन टू द एल्डरली। लेकिन बुजुर्गों के ध्यान के लिए कुछ भी नहीं किया है सरकार ने। That what they have done is for that small, very small number which has come out in this discussion of people who are already identified under the BPL, which is a old list. तो एक आंदोलन कैसे चलाएं, मेरे ख्याल में इसमें इस पूरी चर्चा का एक हिस्सा होना चाहिए कि how will we take this forward as a kind of an andolan. That's a very important thing, because otherwise people will just stay where they are, locked in where they are, and
face the innumerable problems that they are facing. तो सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद. Matthew, thanks very much, and Kinjal for translating both languages and putting forward in a fashion that's extremely important, bringing out the importance of what exactly is happening, and to the School for Democracy for giving us a platform to be able to raise these issues. Now, I think what we should be able to do at the end of this is carry some points forward. And like there is, I agree, cash transfer is something that will be able to help everyone, but there needs to be something special for elderly people. बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए, विकलांगों के लिए कुछ होना चाहिए स्पेशल. वैसे ही इस समय बहुत ही जरूरी है जब तक सबका कैश ट्रांसफर नहीं हो. And this is something that we will need to think about in the days to come. And I hope that this discussion is not just a discussion, it's a discussion that can lead us to saying something, because despite the great vulnerability of the elderly, the great vulnerability of migrant workers who are disabled, a point that was not brought out, कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ करना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए सबको thank you very much to everyone who has been a part. निखिल जी, एक बात कहना चाहता हूं कि अभी ये निर्मला आंटी का proposal सुनने के बाद I wrote to the Prime Minister that no, there is no talk of elderly, no pension, nothing in the thing. And my offer is, of course, I'm writing it on behalf of HelpAge, and if we can draft a kind of thing, a comprehensive thing. Of course, आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो we should raise this thing that there is nothing for the elderly or the disabled, etc. So I can immediately shoot off a letter, or even make a common appeal on behalf of the whole Pension Parishad and send it to the Prime Minister's office, because I'm also in touch with the Cabinet Secretary, whom I've been pushing him to do something for during COVID, and I don't think the government seems to be taking it on a priority, other than saying बुजुर्गों को देखभाल करना चाहिए and things like that. So that is all nice words, but there is nothing to follow up on that. बिल्कुल है मैथ्यू जी. मैं एक मतलब टू जस्ट गिव एन एग्जांपल, जितना पेंशन छोटा मोटा मिल भी रहा है और ज्यादा स्टेट्स ही दे रहे हैं, वो भी लेना, बैंक से लेना इज अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बुजुर्गों के लिए और डिसेबल्ड के लिए. आज बैंक में जाना बहुत मुश्किल है, वहां लाइन लगाना बहुत मुश्किल है, वो पैसा एक्सेस करना बहुत मुश्किल है. और फिर आप कह रहे हो स्टे होम स्टे सेफ, कैसे हो? स्टे होम में पैसा कैसे मिलेगा? तो वो पैसा नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे ये लोग? So this is a extremely serious issue at this particular time, and हमें एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जिसमें सब लोगों के दस्तखत होने चाहिए, because the responsibility for elders and for disabled people is on all of society. It is not just something that they have to fight for themselves. So let's please initiate something. Signatures, we can even, अगर नाम देंगे तो online endorsement कर सकते हैं. If we have a signatory list, right, we can always append it to the memorandum. So that would be very good. So maybe even Kinjal can help us put together a memorandum, and both on disabled and elderly. Let's have both on it. And let's put it out for 3-4 days to get signatures, and then you can perhaps send it forward. You can go on behalf of HelpAge and Pension Parishad तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज को. और कुछ नहीं तो ये इनिशिएट करेगा किसी चीज को जिसके वजह से लोगों को कुछ सहयोग मिलेगा. इस इशू को हाईलाइट भी करेगा और कहीं सामने लाएगा, क्योंकि बुजुर्ग सबसे वल्नरेबल है लेकिन उनकी बात नहीं आ रही है, डिसेबल्ड वल्नरेबल है उनकी बात नहीं आ रही है, और ये ग्रुप सबसे ज्यादा इस समय पीड़ित हैं and दुखी हैं. So thank you to all of you for raising an extremely important issue, and thank you to Loktantrashala. I'd like to end by just making an announcement. There have been a series of so far 8 or 9, I think 9 charchas. The next charcha is on May 19th. अगला May 19 को है. आरोग्य सेतु जो सरकार कह रही है सबको लगाना चाहिए. अब सबके पास पता नहीं कितने बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन भी है,
लेकिन उनको आरोग्य सेतु लगाना है ताकि सरकार की जबरदस्ती है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अंबा काक और दिविज जोशी, ये 6 से 7 बजे 19 मई को होगा, from 6 to 7 p.m. on 19th of May on Arogya Setu and all its implications. It will be done by Amba Kak and Divid Joshi, who have studied the whole app, who understand it, who are people who understand both the social implications and the tech implications of it. So please do join Dr. Shala in its next Charcha, or that link will also be made available. And this, the whole discussion will be available on YouTube for everyone to be able to watch, and on the site of Dr. Shala. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.